Hello friends, this is Deepak and you all are watching my YouTube channel Intelligence. So today we are going to discuss and solving some important MCQs of chapter French Revolution. So let's start the video. So here we are going to discuss question first. When did the French Revolution occur? Or we can say also, in the context of France, fall of the Bastille took place on. Your options are 14th July 1789, option B 14th July 1798, option C 14th June 1789, option D 14th June 1798. So what do you think? Which answer should be? Yes, point A. Point A is the correct answer, right? 14th July 1789. Let's start another question. Question number second. Why was Bastille hated by all? Your options are: it stood for benevolence of the king. Option B, it stood for despotic power of the king. Option C, it stood for armed might of France. Option D, it was a storehouse of ammunition. बताइए कौन सा लग रहा है आपको इसमें करेक्ट आंसर इसका? तो इसका आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा बी, ऑप्शन बी, इट स्टूड फॉर अ डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. व्हाट वाज द बेस्टाइल? आखिर बेस्टाइल तो जो है वो क्या था? ये आपके ऑप्शन है: जेल, कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, ऑप्शन सी अ प्लेस वेयर द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड, ऑप्शन डी किंग ऑफ फ्रांस. जी, so your correct answer is option A, that was the jail, right? Another question. Austrian Princess Marie Antoinette was queen of which of the following French rulers? Your options are Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. And correct answer is Louis XVI. Am I right? Another question is, who was the Queen of France on the eve of the French Revolution? Option A, Marie Antoinette. Option B, Marie Thérèse. Option C, Marie Belchant. Option D, Aquina Monset. Yes, your correct option is option A, Marie Antoinette. Remember it, okay? And question number 1.1a. Austrian Princess Marie Antoinette was queen of which of the following French ruler? So here is the correct answer, option D, Louis XVI. Remember always. Let's start another question. Question number 1.3. Which of the following constituted the privileged class? Option A, clergy and peasants. Option B, peasants and nobility. Option C, first and third estate. Option D, clergy and nobility. जी बताइए कौन सा इसका आंसर सही रहेगा भाई? ऑप्शन डी, क्लर्जी एंड नोबिलिटी. इनको विशेष अधिकार मिले हुए थे, इसलिए इनको प्रिविलेज क्लास कहा गया है यहाँ पे, याद रखिए आप. क्वेश्चन नंबर 1.4. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रिविलेज्ड enjoyed by the clergy and nobility. Your options are: right to collect dues, ownership of land. Option C, participate in wars. Option D, exemption from taxes to the state. बताइए, एक अनुमान तो लगाइए आप कि कौन सा हो सकता है भाई. 1.4 D. Okay. Another question. What was the tithes? So tithes was a tax levied by the church, a tax levied by the king, unit of currency in France. Option D, none of these. आखिर टाइट्स क्या था? क्या वो चर्च के द्वारा लगाया जाता था, या राजा के द्वारा लगाया जाता था, या ये करेंसी थी फ्रांस की, या कुछ भी नहीं? तो इसका ऑप्शन जो आपका कौन सा रहेगा करेक्ट, वो रहेगा ऑप्शन आपका ऑप्शन ए, अ टैक्स लेविड बाय द चर्च. ध्यान रखिए आप सबके सब. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस व्हाट वाज टैली? सो टैली एक्चुअली में क्या था भाई? 1.6 का क्वेश्चन. ये पहला ऑप्शन है एंड इनडायरेक्ट टैक्स,
डायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़ या नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 1.7। किंग इन फ्रांस एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन वाज। जब रेवोल्यूशन हुआ तो उस समय जो किंग थे वो कौन थे? बहुत ईजी आंसर है, आप लोग पढ़ चुके हैं उसको, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? लुइस 16। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है, लुइस 16। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका द स्ट्रगल टू सर्वाइव, और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1715? ऑप्शन है आपके 28 मिलियन, 23 मिलियन, 10 मिलियन, 120 मिलियन। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा, कितना होना चाहिए भाई इसका आंसर? कितनी पॉपुलेशन थी उस समय की? 23 मिलियन। जिन बच्चों ने बुक पढ़ी होगी बढ़िया से उनको याद भी होगा ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1789? सेम एज इट ही है मगर थोड़ा ईयर का थोड़ा गैप है। तो ईयर का देखिए आप, ईयर में जो है 1789 में कितनी हो गई, आप जो है बढ़ के पॉपुलेशन आपकी हो गई 28 मिलियन, रिमेंबर इट। अगला क्वेश्चन है हाउ वाज अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। ये एक मतलब आपका टॉपिक है और इसके अंदर एक कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें एक डिस्कस किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर इन सब्सिस्टेंस क्राइसिस। भाई इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर था जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस से संबंधित नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन है बैड हार्वेस्ट, ऑप्शन बी अब्यूडेंस ऑफ ग्रेन्स, ऑप्शन सी सिक्योरिटी ऑफ ग्रेन्स, ऑप्शन डी इंक्रीज फूड प्राइसेस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? अब्यूडेंस ऑफ ग्रेन्स, याद रखिए सबके साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसाइजेज एन एंड टू प्रिविलेजेस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने दिए हुए हैं। इन फ्रांस द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द एमरजेंस ऑफ अ सोशल ग्रुप टर्म्ड एज द। भाई फ्रांस में 18th सेंचुरी के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं एक नए सोशल ग्रुप जो है सामने उभर कर आया, और उसमें से वो कौन सा नया सोशल ग्रुप था? आपके ऑप्शन है वर्किंग क्लास, ऑप्शन बी मिडिल क्लास, ऑप्शन सी एरिस्टोक्रेटिक क्लास, ऑप्शन डी नोबल क्लास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हाँ जी, अनुमान लगाइए सबके सब। डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो है मिडिल क्लास, याद रखें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्ड सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट। भाई इसमें से कौन सा जो है, कौन जो लोग थे वो जो सोचते थे कि भाई जो सोशल पोजीशन होना चाहिए वो गुण के आधार पे होना चाहिए, मतलब जो भी किसी इंसान को पोजीशन मिले समाज में वो उसके गुण के आधार पे मिलना चाहिए। तो इसमें से कौन सी वो जो है वो कम्युनिटी थी जिनकी ये विचारधारा थी? आपके ऑप्शन है मिडिल क्लास, ऑप्शन बी नोबिलिटी, ऑप्शन सी वर्कर्स, ऑप्शन डी पीजेंट्स। तो आपको कौन सा लगता है इसका ऑप्शन? तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ओके। सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़ वाज एडवोकेटेड बाय। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है मिडिल क्लास एंड पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट, ऑप्शन बी क्लर्जी एंड नोबिलिटी, ऑप्शन सी फिलोसोफर सच एज जॉन लॉक एंड रूसो, ऑप्शन डी इंग्लिश मैन जॉर्ज डेंटन एंड आर्थर यंग। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी फिलोसोफर सच एज जॉन लॉक एंड रूसो। अगला क्वेश्चन है आपका बाय हुम वाज द बुक टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट रिटन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है आपके ऑप्शन हैं जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मिराबेल। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन है आपका ए जॉन लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप इसका। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्यूटेड एंड डॉक्ट्राइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स। आपके ऑप्शन है जॉन लॉक, रूसो, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी है लुइस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी है लुइस 16। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका जॉन लॉक, ध्यान रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हु एडवोकेटेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या बहुत बार इस तरह से पूछा जा सकता है हु रोड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है डार्विन, स्पेंसर, रूसो,
या मोंटेस्क्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी, रूसो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोंटेस्क्यू wrote about separation of powers in his book title. Your options are Two Treatises of Government, option B The Spirit of the Laws, option C Le Montier Universal, option D The Social Contract। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे होगा, ठीक है। हु रोड द स्पिरिट ऑफ द लॉज? स्पिरिट ऑफ द लॉज जो है बुक किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है जॉन लॉक, जैक्स रूसो, ऑप्शन सी वोल्टेयर, ऑप्शन डी मोंटेस्क्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप लोग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अगला जो टॉपिक है आपका वो है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस। पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस, योर ऑप्शंस आर ड्यूमा, राइक्सटेग, लोकसभा, स्टेट जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा स्टेट जनरल। याद रखिए आप, स्टेट जनरल इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट जनरल वाज लास्ट कन्वेड इन, योर ऑप्शंस आर 1604, 1614, 1416 और 1641। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ होगा 1614। 1614 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए ये डेट आप। वोटिंग इन द स्टेट जनरल वाज कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो स्टेट जनरल में जो वोटिंग्स कराई गई थी वो किस प्रिंसिपल के आधार पे जो है कंडक्ट कराई गई? आपके ऑप्शन है ईच मेंबर वन वोट, मेल एडल्ट फ्रेंचाइज, ऑप्शन सी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, या ऑप्शन डी ईच स्टेट वन वोट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ओके, बहुत से बच्चों का जो ध्यान है वो बोर्ड की तरफ नहीं है, तो प्लीज़ बोर्ड की तरफ ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द थर्ड स्टेट फॉर्म एंड अनाउंस द नेशनल असेंबली। भाई जो थर्ड स्टेट की जो है, थर्ड स्टेट ने अपने जो नेशनल असेंबली जो है अनाउंस करी थी वो कहाँ करी थी? आपके ऑप्शन है इंडोर टेनिस कोर्ट, ऑप्शन बी हॉल ऑफ मिरर्स, ऑप्शन सी फिरोज शाह ग्राउंड और ऑप्शन डी विंटर प्लेस। तो इसका आंसर क्या होगा? जी, बुक के शुरुआत में ही आप देखेंगे तो ये टॉपिक है वो आपको दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ए करेक्ट है, इंडोर टेनिस कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस द टेनिस कोर्ट ऑथ took place on, your options are 14 July 1789, 20 June 1789, 4th August 1789 या 5th मई 1789। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 20 जून 1789। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेशनल असेंबली वाज लेड बाय, जो नेशनल असेंबली थी वो किसके द्वारा उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया गया? आपके ऑप्शन है लुइस 16 एंड मैरी एंटोनेट, ऑप्शन बी लेनिन एंड केरेंस्की, ऑप्शन सी मीराबेव एंड एबिसेज, ऑप्शन डी रूसो एंड वोल्टेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मीराबेव एंड एबिसेज करके जो है करेक्टर है, जिन्होंने इनकी एक अहम भूमिका रही, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.6 हु रोट द इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट? योर ऑप्शंस आर एबिसेज, रूसो, मीराबेव या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो रहेगा करेक्ट वो रहेगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। 2.1.1 क्वेश्चन इस तरह से है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। भाई जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग, ऑप्शन बी डू अवे विद फ्यूडल प्रिविलेजेस, ऑप्शन सी गिव इक्वल राइट्स टू वुमेन, ऑप्शन डी एस्टेब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ये रहेगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही बात है। 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि राजा की जो ताकतें हैं उसको कहीं ना कहीं लिमिट में रखा जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो इस तरह से है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बेनिफिटेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। भाई ऐसे कौन से लोग थे जिन्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं हुआ था?
तो आपके ऑप्शन इसमें जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा नोबिलिटी। कौन सा? नोबिलिटी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। नेशनल कलर बताना है हमें फ्रांस का, वो उस समय किस तरह का था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन है ब्लू ग्रीन येलो, ऑप्शन बी है रेड ग्रीन ब्लू, ऑप्शन सी ब्लू वाइट रेड, ऑप्शन डी येलो रेड वाइट। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ब्लू वाइट और रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ब्रोकन चेन सिम्बोलाइज्ड। जो ब्रोकन चेन है उसको वो किस चीज़ को दर्शाती है। आपके ऑप्शन है चेन्स यूज टू फैटर स्लेव्स, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, ऑप्शन सी रॉयल पावर, ऑप्शन डी एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। तो डेफिनेटली जो चेन जब तोड़ी जाती है तो उसका मतलब क्या होता है कि इंसान जो एक तरह से फ्री हो रहा है। तो ऑप्शन डी इसका कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट होगा, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस symbolized. Your options are royal power, option B equality before law, option C law is the same for all, option D strength lies in unity। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन रहेगा डी, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। जो बंडल ऑफ रोड्स है वो कहीं ना कहीं सिम्बलाइज्ड मतलब दर्शाता है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को ही तो दर्शाएगा कि जैसे कि एक डंडी होती है तो एक डंडी तो हर कोई तोड़ सकता है, मगर जब गट्ठा दे दिया जाए, उसका एक बंडल दे दिया जाए, क्या उसको हम तोड़ सकते हैं? नहीं ना। तो वो जो है कहीं ना कहीं एक तरह से यूनिटी को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बलाइज्ड एटर्निटी। योर ऑप्शंस आर sceptre, option B eye within a triangle radiating light, option C the light tablet, option D snake biting its tail to form a ring। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ, स्नेक बाइटिंग द इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। सो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है इन क्वेश्चन आंसर से। तो एक बार ज़रूर आप इसको देखें और आपको वीडियो किस तरह से लगी उसके लिए अभी कमेंट जरूर करना। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप सब। गाइज आई होप you all have enjoyed my video and increased your knowledge, and it will help you undoubtedly and in your exams. So please like, share and subscribe my YouTube channel. It will motivate me to make more videos. Your lovable comments always has been waiting by me. Thank you very much.